Hello friends, welcome to India's largest learning platform, that is the Unacademy, and welcome to this very unique channel that we have called the Crack UPSC CSE. On this channel, I welcome you all and I'll be taking classes of national security. We have India's best educators to help you guide through in this entire process of your UPSC journey. And as I informed that I'll be taking a series called the India's National Security, where we will be trying to understand topics which are of contemporary importance related to national security in depth. My name is Pavneet Friends and I am an author of the Internal Security book, which is published by McGraw-Hill Education. This book, which is available everywhere in the markets and on digital platforms, is also one of the most comprehensive basic textbook that is used by the students for the study of internal security. You can join us on our Telegram channel, as well as you can join me on my community at the Unacademy, the links for which are given in the description of the video below. Friends, we also have comprehensive 20 books on the UPSC notes, which are notes that are designed with comprehensive coverage, contemporary issues, timelines, mind maps, PYQs. More important aspect is that, friends, right now from 18th to 22nd July, there is a 20% discount going on the subscriptions at Unacademy. And based upon your plus offer or your iconic offer, whichever you want to take, you have different months available based upon your preparation requirements. Take advantage of this offer. Come and learn from our best educators. We are all here to guide you. Use my code PAVIS if you want the discounts and if you want a 20% off on your subscription. There is also a CSE Assure program going on, which on the purchase of your 2 years and above subscription will be enabled for you. You can use PAVIS code and even get 20% off on this CSE Assure as well. Friends, this combat is a very important initiative that we run on Unacademy for our students. It is a 50 question test that has to be solved in 60 minutes. You get a lot of scholarships which are almost up to the tune of 4 crore rupees. And very important is that the test is available both in Hindi and English. So in this backdrop, it helps every student who is almost preparing for this examination. The test right now that we have, which is an upcoming test, is on 24th of July. It's at 11 AM. It's a free test. The description to join the test, the link to join the test is given in the link below. You can enroll through that link by using the code PAVIS. And as a result of which, you can take advantage of these good quality stimulating questions that we all set for you, so that you are in a position to think and also you are in a position to attempt questions of the UPSC standard. And friends, we have the widest choice of our educators at Unacademy with flexible timings and flexibility to even change your courses. We provide you with complete end-to-end preparation. And the fact that in the year of 2020 we had 170 toppers and 178 in 2021 proves that all our efforts to help you achieve your goal are coming true. So come join us on the Unacademy platform, you will definitely gain. Friends, the topic for discussion that we have today is called Shallow Pad, the Chinese cyber attacks in Ladakh on the SLODs. Before we begin this topic, I want to give you a quick background of the events which are there. दोस्तों, ये जो टॉपिक है हमारा शैलो पैड करके, जो एक चाइना की तरफ से एक साइबर अटैक हुआ है लद्दाख में। दोस्तों, आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान हमारा एक बहुत बड़ा वैरी है। पाकिस्तान ने भारत के साथ कई बार लड़ाई लड़ी है, चाहे वो 1947 हो, 1965 हो, 1971 हो। उसने भारत के साथ कई बार विवाद करने की कोशिश की है। 1999 में कारगिल विवाद वही था। पर दोस्तों, एक चीज़ समझिए आप, और वो ये है कि जब हम चाइना को देखते हैं, चाइना एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत का एक सीमा विवाद है। ये सीमा विवाद कोई भारत के आज़ाद होने के बाद का नहीं, बल्कि ब्रिटिश के समय का था। वो एक अलग चर्चा है।
पर आपको चीन किस नज़रिए से भारत को देखता है वो चीज़ पहले समझनी है। चीन भारत को दो नज़रियों से देखता है। पहला उसका नज़रिया है कि भारत मेरे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, और ये बहुत बड़ी मार्केट इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो चीन है, एक देश के नाते उसने हमेशा से क्या किया है कि उसने अपना जो फोकस है वो रखा है अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, चीन 1978 से ओपन इकोनॉमी की राह पे चलने शुरू कर चुका था। जैसे जैसे वो ओपन इकोनॉमी की राह पे चलना शुरू किया, चीन ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ क्या करी कि उसने अपनी स्ट्रैटेजी जो बनाई वो थी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। अब दोस्तों, ये जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी होती है, इसमें क्या करता है एक देश जैसे चीन ने भी जो किया कि वो अपने पूरे सोसाइटी के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बिठा देता है। इस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बिठाने के बाद वो देश इस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के तहत जो चीज़ करता है वो ये करता है कि वो पूरे संसार के लिए मैन्युफैक्चरिंग शुरू करता है। तो इस दौरान वो दूसरे देशों की स्टडी करता है। चीन ने भारत जैसे देश की स्टडी करना शुरू करा। उसने देखा कि भाई भारत एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हमारी इतनी जनसंख्या है और सारी जनसंख्या के अलग अलग डिमांड हैं। कहीं पर लो इनकम प्रोडक्ट्स हैं, कहीं पर मीडियम इनकम प्रोडक्ट्स हैं, कहीं हाई इनकम प्रोडक्ट्स हैं। तो चीन ने भारत की भी ये स्टडी करी। उसने देखा कि भाई भारत में तो अलग अलग प्रकार की प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। 1980 1990 ऐसे जैसे जैसे ये दशक आगे बढ़ते गए, चीन ने भारत को एक मार्केट के नज़रिए से देखा, और उस भारत को मार्केट के नज़रिए से देखते हुए उसने ये कोशिश करी कि वो प्रोडक्ट्स हमारी तरफ भेजता रहा। दोस्तों, हमारे यहाँ पर काफ़ी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हम लोग एक एग्रेरियन सोसाइटी थे, फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी बहुत करी, और फिर एक तरीके से हम लोग सीधा सर्विसेज में चले गए। मैन्युफैक्चरिंग एक तरीके से इनकम्प्लीट रह गई। अब दोस्तों, दिक्कत क्या हुई कि जैसे हमारे यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग का स्पेस इनकम्प्लीट रह गया, अब उस स्पेस को किसने फुलफिल किया? चाइना ने अपने प्रोडक्ट यहाँ पर डंप करके। तो चाइना सबसे पहले दोस्तों भारत को एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थिक मार्केट देखता है। चाइना को ये लगता है कि भाई मुझे अगर अपना प्रोडक्ट बेचना है तो भारत से बढ़िया कोई जगह ही नहीं। उसने भारत के साथ पिछले 2 से 3 दशकों में ऐसी इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट कर ली है दोस्तों, कि उस इंटरडिपेंडेंसी के कारण आज की डेट में भारत ऐसी स्थिति में फंस गया है कि इवन अगर वो चाहे कि किसी एरिना में वो चाइना के प्रोडक्ट को बीट करके खुद के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करे, तो भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो अचीव नहीं कर पा रहा है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर अपन लोग कर पा रहे हैं, पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं अचीव कर पा रहे हैं, जिसके कारण से चाइना को आउट कर दें और अपना मार्केट डोमिनेंस वापस ले लें। तो कहीं ना कहीं चीन ने हमारे ऊपर एक अर्थव्यवस्थिक दबाव डाल दिया है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि भारत और चीन का ब्रिटिश के समय से एक सीमा विवाद अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, चीन ने कहीं ना कहीं अगर उसके व्यवहार को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो उसने उस सीरियसनेस के साथ भारत के साथ वो विवाद को कभी सॉल्व करने के लिए एक मोटिवेशन भी नहीं दिखाया। हाँ, ये ज़रूर आप कह सकते हैं, जब हम भारत चीन के सीमा विवाद को पढ़ते हैं कि जब दोनों देश एक तरीके से आज़ाद हुए थे तो उस समय एक पॉइंट आ गया था जहाँ पर सोल्यूशन आ सकता था, पर फिर वहाँ से भी हम लोग डाइवर्जेंट पाथ पे चले गए। बट वो चलो, वो क्या कारण थे क्या नहीं थे, हमें उस पर चर्चा नहीं करनी। पर जब से वो डाइवर्जेंस हुआ, एक बिल्कुल प्रॉक्सिमेट पॉइंट पे आने के बाद भी, तब से दोनों देश कहीं ना कहीं सीमा विवाद को लेकर दूसरी दिशाओं में चल रहे हैं। भारत ने अपनी तरफ से कोशिश करी उस विवाद को और कम करने की, चीन और दूर जाता रहा। अब समस्या ये है दोस्तों कि चीन भारत के साथ ये सीमा विवाद को हल क्यों नहीं करना चाहता?
उसका सबसे बड़ा कारण ये है, और सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत की खुद की एक एम्बिशन, और एम्बिशन की भाई भारत खुद आज की डेट में एक ग्रेट पावर बनना चाहता है। अगर भारत खुद एक ग्रेट पावर बनना चाहता है तो चीन को आज की डेट में एक इनसिक्योरिटी है कि नहीं भाई, अगर भारत एक ग्रेट पावर बन जाएगा तो मेरे को एशिया में एक ग्रेट पावर जो आज की डेट में मैं खुद हूँ और खुद बनने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरे को भारत के साथ शेयर करना पड़ेगा। भाई शेयरिंग हम नहीं करेंगे। तो चीन का मानसिक स्थिति को समझिए। चीन आज की डेट में भारत के साथ सीमा विवाद को नंबर 1 कभी सुलझाएगा नहीं। दूसरी बात यह है कि भारत का जो एक एम्बिशन है कि भाई मुझे वर्ल्ड में एक ग्रेट पावर बनना है, वो उस ग्रेट पावर एम्बिशन को भी रोकेगा। लेकिन समस्या दोस्तों यही है, और समस्या ये है कि ना तो मैं भारत को ग्रेट पावर बनने दूंगा, और दूसरा उसको ग्रेट पावर बनने से रोकने के लिए मैं उससे डायरेक्टली लड़ूंगा भी नहीं। और मैं लड़ूंगा इसलिए नहीं क्योंकि मैं लड़ना नहीं जानता, लड़ूंगा इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है, बट लड़ूंगा इसलिए नहीं क्योंकि मेरी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी है। तो मुझे इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी बनाते हुए उसके ग्रेट पावर के एस्पिरेशन को रोकना है। अगर आप ये थिंकिंग समझ जाते हैं ना दोस्तों, तो भारत चीन के बीच में जो एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है, भारत चीन के बीच में एक जो सामाजिक लड़ाई है, भारत चीन के बीच में एक जो राजनीतिक लड़ाई है, आप वो समझ जाएंगे। क्योंकि चीन के मन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। चीन ने भारत को इकोनॉमिकली एनमेश करके रखा हुआ है अपने साथ। चीन ने भारत को इकोनॉमिकली एनमेश करने के बजाय सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि उसने हमारे ग्रेट पावर एम्बिशन को रोकने की भी कोशिश की है। अब इस परिस्थिति में एक चीज तो तय है दोस्तों, और जो चीज तय है वो ये है कि कहीं ना कहीं चीन आज की डेट में भारत से डायरेक्टली लड़ना नहीं चाहता। चीन आज की डेट में भारत के ऊपर एक आक्रमण करके युद्ध नहीं करना चाहता। वो भारत के साथ छोटे छोटे विवाद पैदा करता रहेगा। वो विवाद आज लद्दाख में है, वो विवाद कल अरुणाचल में होगा, वो विवाद परसों उत्तराखंड में होगा, वो विवाद कहीं ना कहीं होगा, पर विवाद ही होगा, युद्ध नहीं होगा। क्योंकि आप समझिए दोस्तों कि चीन भारत से युद्ध नहीं करेगा, वो हमें, जिसको हम कहते हैं पिन प्रिक करेगा। इसको हम कहते हैं पिन प्रिकिंग। एक पिन लेके जब आप ऐसे हाथ पे पिन मारते हो, एक छोटा सा बूंद खून का निकलता है। अब आप सोचो कि वो क्या कर रहा है कि भारत को 25-30 जगह पर उसके शरीर पे पिन मार रहा है। दोस्तों जब आपके 25-30 जगह पे मैं शरीर पे पिन मारूंगा तो आपके 25-30 जगह पर एक एक बूंद खून निकलेगा। 25-30 बूंद खून निकलने से आपकी हत्या तो नहीं होगी, लेकिन 25-30 बूंद खून निकालने के बाद मैं आपको बोलूं कि चल अब जो है 15 किलोमीटर पहले मुझे दौड़ के दिखा, आप कहोगे यार अभी रुक जा, दौड़ नहीं सकता भाई, थोड़ा सा मल्लम पट्टी करके पहले ये दर्द ठीक कर लूं, हल्का हल्का दर्द हो रहा है, बहुत दर्द नहीं है लेकिन हल्का हल्का दर्द है। चीन भारत को इस नज़रिए से देखता है। वो ये नहीं चाहता कि भारत के साथ कोई हमारा बहुत बड़ा युद्ध हो, वो ये चाहता है कि मैं भारत को पिन प्रिक करता रहूं। एक छोटा सा पिन लेके कभी लद्दाख में पिन मार दूं, कभी अरुणाचल में पिन मार दूं, कभी दौलत बेग ओल्डी में मार दूं, कभी मैं वो भूटान के आसपास का इलाका डोकला में वहाँ पिन मार दूं, कल को वो नेपाल के आसपास के काला पानी इलाके में आके पिन मार देगा। हमें ब्लीड करना चाहता है। इस ब्लीडिंग से उसको क्या एडवांटेज मिल रहा है? यही जो अभी आपको बताया कि 25-30 जगह शरीर पे पिन मार दी और बोले कि चल बेटा 15 किलोमीटर दौड़ के देखा, तूने फौज में भर्ती होना है, तू अग्निवीर बनेगा। आप नहीं भाग पाएंगे। आप कहेंगे भाई ऐसा है मैं भाग लूंगा लेकिन मुझे 15 मिनट जरा रेस्ट करने दो यार, थोड़ा मल्लम पट्टी लगा के सेवलॉन लगा लूँ मैं। चीन यही चाहता है। चीन चाहता है कि भारत का जो एक राइज है टू बिकम अ ग्लोबल पावर, उसको रोका जाए। उसको कैसे रोकेंगे?
पिन प्रिक करूं। तो पहला चीज समझिए कि भारत और चीन के बीच कभी भी एक कन्वेंशनल वॉर नहीं होगा, कभी नहीं होगा, हुआ ही नहीं है अभी तक। कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, तो भारत और चीन के बीच आप देखेंगे कि दे विल हैव कॉन्फ्लिक्ट्स, दे विल हैव स्टैंड ऑफ्स। कॉन्फ्लिक्ट और स्टैंड ऑफ में क्या अंतर है, अब देखिए वो एक टेक्निकल चीज़ है, हम IR की प्लस कोर्स में हम उसको पढ़ाते हैं, उस एरिया में अब हम नहीं जा रहे। बट चीन और भारत के बीच में जो होगा वो कॉन्फ्लिक्ट और स्टैंड ऑफ होगा, पहली चीज। दूसरी बात, अगर चीन चाहता है कि वो भारत को सिर्फ पिन प्रिक करे, हमें ऐसे चूंटी मारे, कभी पिन मारे, ये सब हरकत करे, तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि वो कन्वेंशनल लेवल पे नहीं लड़ रहा है। और अगर वो कन्वेंशनल लेवल पे नहीं लड़ रहा है तो उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, या तो वो कन्वेंशनल लेवल से ऊपर चला जाए। कन्वेंशनल लेवल से अगर वो ऊपर जाता है तो कन्वेंशनल लेवल से ऊपर क्या है, वहाँ तो न्यूक्लियर है कि भाई आप न्यूक्लियर लेवल पे चले जाओ। अब चीन के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, तो क्या ये न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि देखो दोनों स्टेट्स न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। और न्यूक्लियर स्टेट वही होता है जो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हो, विद वन एक्सेप्शन पाकिस्तान, उसको छोड़ दीजिए। तो चीन और भारत एक सिविलाइजेशनल पावर्स हैं, वो ये बात जानते हैं कि भाई न्यूक्लियर लेवल पर लड़ना बेकार है। दूसरा, सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है, अगर वो कन्वेंशनल लेवल पे नहीं लड़ेगा तो फिर किस लेवल पे लड़ेगा? सब कन्वेंशनल लेवल पे। और अगर अब वो सब कन्वेंशनल लेवल पे लड़ेगा तो दोस्तों एक चीज़ तो तय है कि कन्वेंशनल लेवल पे अगर मिलिट्री टू मिलिट्री का लड़ाई है तो वो कन्वेंशनल से एक लोअर लेवल का गेम खेलेगा। और ये लोअर लेवल का गेम आज की डेट में चाइना हमारे साथ खेल रहा है। इस लोअर लेवल गेम को जो एक सब कन्वेंशनल लेवल पे लड़ी जा रही है, इस चीज़ को अगर आप समझ जाएं कि ये क्यों लड़ी जा रही है तो आप ये टॉपिक का महत्व भी समझेंगे। तो मैं आपको जो सबसे पहली चीज़ बच्चे समझाना चाहता हूँ वो ये है कि चाइना भारत से एक इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी बना चुका है। इकोनॉमिकली उसने हमारा हाथ ऐसे पकड़ लिया है जैसे दो प्रेमी जो हैं लोधी गार्डन में चलते हुए पकड़ते हैं। पर यहाँ पर दोनों का लड़ाई हो रखा है, क्योंकि मैडम को जो है बर्गर खाना था और भैया को पिज्जा खाना था। तो वो हाथ में हाथ धरे चल तो रहे हैं क्योंकि अभी 2 महीने पुराना रिलेशनशिप है, लेकिन समस्या केवल ये है कि भाई अब हम बर्गर खाएं या पिज्जा खाएं ये समझ नहीं आ रहा। इस स्थिति में आप दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए कि चाइना ने इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी भारत से बना रखी है, हमारे हाथ से अपना हाथ पकड़ के चल रहा है वो। लेकिन वो हाथ इसलिए नहीं पकड़ रहा है कि हमें मदद करना चाहता है कि कल को अगर मेरा पाँव कीचड़ में पड़ गया तो मुझे पकड़ के खींचेगा ना। हाथ हमारा वो इसीलिए पकड़ रहा है दोस्तों क्योंकि उसको ये बात पता है कि कहीं भारत अगर मुझसे तेज चलने लग गया तो उसका हाथ खींच के यूँ रोकूंगा, रुको धीरे चलो। आप सोचिए, जब आप बचपन में अपने दादू का या नानू का हाथ पकड़ के उनको बाहर घुमाने लेके जाते थे तो नानू दादू बोलते थे कि बेटा धीरे चलो, हम तेज नहीं चल सकते, और आप उतावले होके भाग रहे होते थे। तो आप क्या हैं? आप वो नवजात शिशु हैं। भारत अभी नवजात शिशु है जो भाग रहा है, वो चाहता है कि मैं एक ग्लोबल एस्पिरेशन पालूं। चीन जो है वो बड़ा है, बोल रहा है कि नहीं भाई देखो ऐसा है, तुम्हें आगे तेज चलने नहीं देंगे। तो उसने हमारा जो इकोनॉमिक हाथ पकड़ा है ना दोस्तों, ये इंटरडिपेंडेंस जो बनाई है ना, दैट इज नॉट टू अपलिफ्ट इंडियन सोसाइटी, दैट इज नॉट टू जेन्युइनली हेल्प इंडिया बिकम अ इकोनॉमिक पावर,
That is only to make sure that India does not rise as a global power. You have to understand this is how China behaves with us. अब अगर चाइना इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो पहली बात वो क्या करेगा, आपसे वो कभी भी लड़ाई नहीं करेगा, सब कन्वेंशनल लेवल पे गेम खेलेगा। तो चाइना आज की डेट में भारत को एक सब कन्वेंशनल लेवल पे देख रहा है। अब सब कन्वेंशनल लेवल पे गेम खेल कैसे रहा है वो, जैसे कि उसने हाल ही में खेला। उसने क्या करा दोस्तों, ये शैलो पैड नाम का एक मैलवेयर बनाया उसने। शैलो पैड करके, ये जो उसने शैलो पैड करके मैलवेयर बनाया ना, ये मैलवेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैलवेयर बेसिकली क्या होता है दोस्तों, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर, नाम से ही समझ रहे हो आप कि जो बनाया किसी को मेलाइन करने के लिए, तंग करने के लिए। तो एक ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर बनाया इसने शैलो पैड करके। अब बताओ ये बनाया किसने, ये बनाया चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने और चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने, MSS। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर ये बनाया शैलो पैड। अब इन्होंने क्या किया कि जब ये शैलो पैड बना लिया, जो कि एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर था, अब ये सॉफ्टवेयर इन्होंने इंडिया में लद्दाख में भेजा। लद्दाख में एक स्टैंड ऑफ अभी ऑलरेडी चल रहा है हमारा, 2020 से चल रहा है। इसने क्या करा कि लद्दाख में उस मैलवेयर को भेजा। अब आप देखो कि आप अपने देश में एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर बना रहे हो। ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो आपने अपने देश में बनाया है, इस मैलिशियस सॉफ्टवेयर को अब आप दूसरे देश में कैसे भेजोगे, इंटरनेट के तहत भेजोगे। इसने पता है क्या किया, इस शैलो पैड मैलवेयर को भारत में भेजा ताइवान और साउथ कोरिया के इंटरनेट गेटवेज से। इसने ताइवान के, साउथ कोरिया के इंटरनेट गेटवेज का प्रयोग किया। उन इंटरनेट गेटवेज से ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर भारत में लद्दाख में भेज दिया। आप ये देखो कि ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर जब इसने ताइवान और साउथ कोरिया के इंटरनेट गेटवे से भारत में भेजा, ये सीधा चला गया लद्दाख में। लद्दाख में हमारे स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स में। अब आपको मैं दूसरी चीज बताता हूं। भारत पिछले कई सालों से लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। लद्दाख में दो चीज़ों की कमी थी, वहाँ पर सड़कें नहीं थी। तो पहले तो भारत सरकार ने बोला कि हम पूरे लद्दाख में सड़कें बनाएंगे जी। सड़कों का निर्माण चालू हो गया। फिर भारत सरकार ने ये बोला कि भाई लद्दाख के लोगों को क्या समस्याएं आती हैं। सबसे बड़ी समस्या लद्दाख के लोगों ने लद्दाख के सरकार को और लद्दाख की सरकार के तहत भारत सरकार को बताया कि भैया हमारे यहाँ पर तो सर्दियों में बिजली ही नहीं आती, बर्फ़ पड़ती, बिजली ख़त्म। लद्दाख हाई ऑल्टीट्यूड पे है, हमें आदत है बुलेट लेके वहाँ पर फटफट फटफट करते हुए जाके जाने की, घूमने की। पर सब लोग घूमने गर्मियों में जाते, सर्दियों में कोई जाता ही नहीं, क्योंकि सड़कें जमी होती हैं, बर्फ़बारी बहुत होती है। तो वहाँ पर लद्दाख के लोगों ने ये बात बोली कि देखिए साहब, हमारे पास तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है। पिछले कई सालों से भारत सरकार एक कॉन्सर्टेड तरीके से पूरे के पूरे लद्दाख के रीजन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नेटवर्क बना रही है। वो कोशिश क्या कर रही है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको जनरेट करके डिस्पैच सेंटर से डिस्पैच करके लोगों तक पहुंचाया जाए। तो उसने लद्दाख में कई इलाकों में छोटे छोटे स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स बनाए। ये स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर जो बनाए हैं ना, ये क्या है? ये स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स एक तरीके से पूरे लद्दाख की पॉपुलेशन को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रहे हैं।
अब चाइना ने क्या किया, शैलो पैड बनाया साउथ कोरिया और ताइवान के इंटरनेट गेटवेज के तहत। ये शैलो पैड मैलवेयर ये लद्दाख के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स में डाल दिया। ये जो मैलवेयर बनाया इन्होंने शैलो पैड, इससे इन्होंने एक तरीके से क्या किया कि जो भारत में हमने इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया अपने लोगों को, इन्होंने वो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में ये मैलवेयर डाल दिया। अब ये जो मैलवेयर शैलो पैड इन्होंने डाला, ये हमारे यहाँ पर जो साइबर एक्सपर्ट्स थे उन्होंने तुरंत उसको पकड़ लिया। उन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस को, रॉ को, दोनों को इन्फॉर्मेशन दी। दोनों संस्थाएं एकदम जुड़ गई काम करने में। उन्होंने इसको डिसाइफर करके इसको ट्रेसिंग करना चालू किया। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब आपके ऊपर एक साइबर अटैक होता है एक मैलवेयर से, तो आपका सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होता है कि भाई आप सिस्टम को शट डाउन कर दो कि भाई कोई फर्दर डैमेज ना हो। अब हमने क्या किया कि जब ये डिटेक्ट हुआ, हमने स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर बंद कर दी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई काट दी। इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस पे हुआ? लोगों पे। समझ रहे हो आप? अननेसेसरीली आपके लोगों के ऊपर कष्ट आया, पहली चीज़। दूसरी, अब आपने इन्वेस्टिगेशन टीम में बिठा दी। उन्होंने पहले तो ये जानने की कोशिश करी कि ये मैलवेयर है क्या। उन्होंने ये समझा कि ये मैलवेयर बना क्यों है, तो उन्होंने ये जाना, हमारी सुरक्षा संस्थाओं ने, रॉ ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, कि भाई ये जो मैलवेयर है ये बना इसलिए है कि ये सिर्फ स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी देखना चाहता था। ये देखना चाहता था कि इन सेंटर से कितने हाउस होल्ड्स को जो है इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार इसमें क्या बड़ी चीज़ थी, चाइना ये इतनी हल्की चीज़ कर रहा है कि यार उसने मैलवेयर डाल दिया, ये देख रहा है कि कितनी कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी की थी, वहाँ से कितने घरानों में ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, भाई ये कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है? ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये इसलिए बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों क्योंकि जो चाइना ने शैलो पैड से किया उसको हम बोलते हैं ड्राई रन ऑपरेशन। उसको हम बोलते हैं ड्राई रन ऑपरेशन। और जो ये ड्राई रन ऑपरेशन होता है ना दोस्तों, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अब देखो, चाइना ने हमारी स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स को लद्दाख में अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसने सिर्फ इंफॉर्मेशन चोरी करी। अब आप समझने की कोशिश करो कि ये जो इंफॉर्मेशन इसने चोरी करी, इस इंफॉर्मेशन को चोरी करके चाइना को क्या मिला? सोच के देखो। चाइना को सबसे इम्पोर्टेंटली ये मिला कि चाइना के पास आज की डेट में इंफॉर्मेशन है कि लद्दाख के कितने हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से दी जा रही है, कितने स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स के तहत दी जा रही है। कल को अगर चाइना को भारत को टारगेट करना होगा या भारत के ऊपर कुछ एक तरीके से अलग लेवल की पिन प्रिकिंग करनी होगी, तो वो ये मैलवेयर जो आज उसने शैलो पैड बनाया, ये मैलवेयर जो एक तरीके से सिर्फ इंटरसेप्ट कर रहा था इंफॉर्मेशन को, ये मैलवेयर जो आज की डेट में सिर्फ स्टडी करके निकल गया कि कितने घरानों को इलेक्ट्रिसिटी मिली है, कल चाइना यही मैलवेयर का एक नया वेरिएंट निकालेगा। इस नए वेरिएंट से वो क्या करेगा कि इस नए वेरिएंट से, इस नए मैलवेयर से वो सारी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रोक देगा। सोच के देखो, आज उसने ये किया है, कल वो ये करेगा, इसलिए इसको बोला जाता है ड्राई रन ऑपरेशन। आज आपने ये किया है कि आज आपने जान लिया कितने हाउस होल्ड्स में इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, कल आप क्या करोगे? इन्हीं हाउस होल्ड्स में इलेक्ट्रिसिटी को आप डिसरप्ट कर दोगे एक नए मैलवेयर से। इसीलिए ये सीरियस इशू है, इसीलिए इस चीज़ को लाइटली लिया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर समझिए दोस्तों कि चाइना ने सबसे महत्वपूर्ण तरीके से देखिए कि ताइवान, साउथ कोरिया का प्रयोग किया उनके इंटरनेट गेटवेज का। जब हमारी सुरक्षा संस्थाएं लग गई इस काम में ढूंढने को कि भैया ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो ओरिजिन दिखा साउथ कोरिया और एक तरीके से ताइवान के इंटरनेट गेटवे से आता हुआ। फिर हमने और डिग करा
डिग करते हुए हम लोग पहुंचे तो भैया पता चला ये तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का हैंडीवर्क है। देखो ये रिवर्स डिगिंग का काम, इसके लिए जो इनोवेटिव सॉफ्टवेयर चाहिए, इसके लिए जो थॉट प्रोसेस चाहिए, वो रॉ जैसी संस्था और मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास है। वो कैसे करती हैं वो प्रोसेस यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा, वो दिलचस्प टॉपिक है कभी ऐसे ही चर्चा करने के लिए, पर हमें यहाँ एग्जाम पास करना है। तो जब उन्होंने ये करा तो उनको पता चल गया कि ये ओरिजिनेट तो चाइना से हुआ है। अब जब हमें ये पता चल गया, अब क्या हुआ दोस्तों, अब सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि भाई चाइना ने ये हरकत कर दी, ये हमें पता चल गई, पर ये क्या चीज़ हमें पता चली 2 घंटे में। जब चाइना ने शैलो पैड को लद्दाख के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स के ऊपर डाला, तो क्या हमें 2 घंटे के अंदर ही सारा गेम चाइना का समझ आ गया? नहीं। अब आप सोचो, चाइना आपके ऊपर साइबर अटैक कर रहा है, साइबर अटैक को आप पहले रोक रहे हो, अपने सिस्टम्स को बंद कर रहे हो, फिर आप बैक ट्रेसिंग कर रहे हो, फिर वो बैक ट्रेसिंग से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हो कि उसका ओरिजिन कहाँ से आया। दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तो लग जाते हैं, कई बार तो 1 महीने से ऊपर लग जाता है। और 1, 1.5, 2 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है भैया चाइना ने 2 महीने पहले ये किया था। सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब आपने 2 महीने बाद ये पता कर लिया कि ये चाइना ने किया था, आप चाइना का क्या कर लोगे? 2 महीने के बाद तो आप चाइना को नहीं बोल सकते ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस करके आप चाइना को पॉइंट आउट कर दो कि देखो भाई हमें ये सबूत मिला है, जो भारत सरकार ने किया अभी, कि हमने बोल दिया कि भाई देखो हमें ये सबूत मिला, तुमने ये हरकत की थी। पर दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, सोच के देखो, इस पूरे ऑपरेशन में अगर कोई पार्टी की मॉरल विक्ट्री हुई है वो है चाइना। उसने एक ऐसा खेल खेल दिया हमारे साथ कि जिसमें भारत के पास इंस्टेंटली रिटेलिएट करने का तो ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि ये ही नहीं पता कि इंस्टेंटली रिटेलिएट करें भी तो किस पे करें। समझिए कि चाइना के साइबर अटैक्स आज की डेट में भारत के खिलाफ इस नज़रिए से डिज़ाइन होके आ रहे हैं कि भारत की रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी को ही वो लिमिट करता जा रहा है, कि भारत को एक ऐसी परिस्थिति में डाल के रख देगा कि भारत अगर इन्वेस्टिगेट कर भी ले, मैं कह रहा हूँ बहुत स्पीडीली कर ले, 10 दिन में आइडेंटिफाई कर ले, तो 10 दिन के बाद तो आप रिटेलिएट नहीं करोगे ना, क्योंकि 10 दिन के बाद रिटेलिएट करने से क्या होगा आपको? कुछ भी नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, आप रिटेलिएट भी क्या कर लोगे? अब आप ये कह दो कि भैया देखो चाइना ने मेलवेयर का प्रयोग करके मेरे स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स पे टारगेट किया, तो मैं चाइना पे परमाणु बम गिराने जा रहा हूँ, तो आप कर नहीं सकते। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो? हाथ पे हाथ धर के बैठ सकते हो। तो आप इस चीज़ को समझिए, चाइना आपको इस स्थिति में बार बार ला रहा है, भारत इस स्थिति में बार बार आ रहा है, क्योंकि भारत आज की डेट में कुछ भी कर नहीं पा रहा है, और ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से 2-3 चीज़ें आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। पहली चीज़ जो आपको क्लियर हो जानी चाहिए वो ये है कि भाई चीन भारत को किस नज़रिए से देखता है और क्यों। दूसरा, आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि चीन अगर भारत के लेके या भारत के ऊपर कोई भी सुरक्षा परिस्थिति हमारे लिए क्रिएट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, चाहे वो लद्दाख स्टैंड ऑफ हो, पिन प्रिकिंग कर रहा हो, या साइबर अटैक कर रहा हो, पिन प्रिकिंग कर रहा हो। तीसरा, आपको ये समझ आ जाना चाहिए दोस्तों कि पिन प्रिकिंग अगर एक साइबर अटैक का तरीका लेती है तो वो साइबर अटैक के तरीके में एक ड्राई रन ऑपरेशन किया जाता है, और सिर्फ ड्राई रन ऑपरेशन करना ही एक पिन प्रिकिंग का कार्य नहीं था, बल्कि पिन प्रिकिंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि आपका एक रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स को ही हमने डिले कर दिया। तो मॉरल विक्ट्री आपकी थी, आपके पास ड्राई रन का डेटा भी आ गया। अब आप जो है भारत को एक ऐसी स्थिति में ले आए कि भारत इसके बाद अब आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो से आप लोगों के मन का एक ये थॉट जो मैंने आपको बताया ये आपको क्लियर हो गया होगा।
कि किस नज़रिए से जो है भारत को देखा जाता है चीन में, और भारत के ऊपर आज की डेट में जो चीन हरकतें कर रहा है वो क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, ये आपके सामने मैंने पेश करने की कोशिश करी। बाकी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, अनअकैडमी से जुड़िए। अनअकैडमी से जुड़ने के दौरान अगर आपको कोई फाइनेंशियल स्थिति की रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको 0% EMI के बेसिस पे मदद भी करेगी। और दोस्तों, हमारी एक लेजेंड विजडम सीरीज़ भी स्टार्ट हो रही है, उसमें मैं आपके साथ हैबिट्स के ऊपर चर्चा करूँगा, तो आप इसके लिए भी इनरोल कीजिए। और 21 जुलाई से हमारे जो है UPSC के बैचेज़ हैं, इंग्लिश और बाइलिंगुअल, इन बैचेज़ को ज्वाइन कीजिए और सब्सक्रिप्शन अपनी लीजिए। तो आई होप कि आपको ये जो चाइना का थॉट मैंने दिया, जैसे पिछले वीडियो में पाकिस्तान का दिया था, तो ये दोनों चीज़ों से आपके थॉट प्रोसेस में कुछ क्लैरिटी आई। थैंक यू।